Let everyone be happy. This pure intention is every heart. It only needs to unfold a little bit more. During the weather and all the inconveniences, see how we have all gathered here. That itself is a message that we are determined to. We are determined to bring the positivity in society. Where people from all different ideology come on one platform to agree on the common shared principle that the world today really needs. When there is so much tension between communities, I'm repeating it in English so that there are many international people who are listening to this today and all over the world. Yesterday I got the number 161 countries watched us in 100,008 locations. So almost, we are not alone, we are not just a few people here. As I said, my family is 7 billion people. So remember, if you want to invite me for anything, you are inviting 7 billion people. I know many of you are looking for meditation, that I will put it a little later, because many artists who want to sing and practice. It's so heartening to see the people from Pakistan here, our neighbor from Nepal here, Bhutan, and of all, today we have a chief guest from Syria. Grand Mufti of Syria is here. And you know, when he met with me yesterday, he said, Guruji, India had the longest, oldest philosophy of the planet. And I very much love to see this and be part of this beautiful festival you are having. We need this peace today in Syria. And I said, of course, yeah, we are with you. It's one country today, but we all have to pray that Syria, Iraq, we have the minister from Iraq here. We have people from Lebanon, we have from Jordan. We need to wake up to the human values that all religions have been talking all through the ages. सदियों से सभी धर्मों का एक ही पुकार था, मानवीयता को ऊपर उठाओ. धर्म का अर्थ यही है जो हमको थामे रखें, गिरने से ऊपर उठा के रखें. मगर हम भूल भाल गए इन सब चीज. पांचवी चीज है अध्यात्म, जो सभी धर्म का सार है. उस अध्यात्म का एक सम्मेलन यहां चल रहा है. चलिए, अभी हमारे साथ अभी आए हैं देवबंद से भी यहां आशीर्वाद देने, सबको दुआ देने आए हैं. सूफी संत, कई सूफी संत आए हैं. और पाकिस्तान से भी इमाम, काफी इमाम लोग यहां आए हुए हैं. जैन मुनि जी आए हैं यहाँ, तरुण सागर जी और आचार्य आशुष मुनि जी आए हैं. इस तरह से, और अमेरिका से सदर्न बैप्टिस्ट चर्च के रेवरेंड डुडली एंड कार्टर आए हैं. डॉक्टर कार्टर एंड डुडली, they come all the way from America
to participate in this large program. So also there are many people from all over Europe. We have Rabbi Sutendorf, who have always been talking about peace in the world. In every interfaith conference in the world, you will always find Dr. Sutendorf. Welcome, Dr. Sutendorf. Rabbi Sutendorf, you are bright. And we have 100-year-old Mar Thomas priest आए 100 साल के केरला से चल के आए यहाँ हम लोगों को आशीर्वाद। कितनी बड़ी बात है, 100 साल के अभी आप बोल के भी गए, कितना सुंदर बोला उन्होंने। तो विचार मिलते हैं। अब हम सब उस पथ तो है, उस पथ पर चलना है। हम तो चल रहे हैं और लोगों को चलने के लिए प्रोत्साहन करें। बड़े संत महात्मा आए हैं। आप शिष्टाचार में कुछ आगे पीछे हुआ हो तो आप बड़े दिल के हैं, विशाल दिल के, हम सबको माफ कर देंगे, ये हमें यकीन है। इतना बड़ा आयोजन में कभी शिष्टाचार में थोड़ा आगे पीछे हो सकता, मगर संत हृदय नवनीत समाना हम जानते ना, तो इसलिए आप नवनीत समान हो तो आपका आशीर्वाद सब पर होगा, है ऐसे हम मान के चलते हैं। ऐसे ही ब्रह्म कुमारी जी से या दादी जानकी का भी आज संदेश आया है। हमारे कई प्रदेशों से धार्मिक नेता अकाल तख्त के मुख्य जत्थेदार जी आके अभी आशीर्वाद देके गए। कहा कितना गिने, सब आए। और राजनीतिक क्षेत्र से भी दुनिया भर के यहाँ आज नायक लोग, नेता लोग, वशिष्ठ मान्यवर लोग यहाँ पधारे हैं। ये एक अनूठा संगम है। कला, माध्यम, संत, व्यापारी, गरीब किसान, गरीब नहीं बोलूंगा, वो श्रीमंत सिख किसान है, वो उसका दिल जितना बड़ा है मैं बता नहीं सकता। जब हम इस आयोजन की बात कर रहे थे, एक किसान आया, एक छोटा लड़का, 30 साल का। मैं ये कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 30 साल का एक लड़का है, 30 से कम उम्र का होगा। हमारे वॉलंटियर लेके गुरुदेव ये आपको कुछ देना चाहता है। मैंने कहा क्या? तो उसने हमारे हाथ में एक लिफाफा पकड़ाई। यूजुअली मेरे पास लिफाफा आते हैं, उसमें कुछ समस्याएं होती है लिखी हुई। मैंने उसको खोल के देखा, उसमें एक चेक था, 20 लाख का चेक उसमें। गुरुजी आप इतना बड़ा काम, ये आपको लेना ही है। मैंने कहा भाई तू क्या करता है? वो बोले गुड़गांव से आगे 4 एकड़ का जमीन है मेरे पास। तुम्हारे पास कितना पैसा? बोले 1 करोड़ है गुरुदेव, मैं और मेरी माँ रहते, खेती करता हूं। मैंने कहा तुम्हारा ये भाव काफी है मुझे, ये मैं नहीं लेने वाला। जो और ये कम है क्या, मैं और दूं क्या? मैंने कहा नहीं। फिर वो रो पीट के मैंने कहा मैं इसमें 1% ले। वो तुम्हारा भाव है ना, वो काफी। जिस हालत में हमको ये दुनिया मिली है, इससे बेहतर हालत में हमें छोड़ के जाना है बच्चों के लिए। आप सब एग्री करोगे ना? एक हिंसा मुक्त समाज, रोग मुक्त शरीर, भ्रम मुक्त मन,